ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے سیاں نال میں کھیڈن گئی ٹٹ گئیاں میریاں ونگاں ماں ہوندی تے اور چڑھا دی باپ تو کیویں منگا کئی لک لک روڑ گے کئی بک بک روڑ گے کئی لک لک روڑ گے کئی بک فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص احترام کرے جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے مرو کہ ہر شخص سلام پیش کرے. اللہ تعالیٰ کی مقدس پاک مبارک کلام قرآن مجید میں سے آیات بینات کی تلاوت کی ہے میں نے. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ عرش ناز میں دعا ہے کہ جس سفر پہ ہمارا یہ عزیز انتہائی پیارا عمران اپنے سفر آخرت پہ رواں دواں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا سفر جو ہے وہ بہتر فرمائے، اور اس سفر کے لیے جس سفر پر یہ روانہ ہے اس سفر کی ہمیں بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بے شک جو آیا ہے اس نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس نے آنا ہے اس نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے. گو کہ موت ذائقہ جو ہے وہ الگ الگ ہے. جو بھی انسان تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. بہت علالت اس پیارے عزیز نے میرا بہت پیارا شاگرد رشید تھا. قرآن دنیا اسلام کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید جو PhD ڈگری سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، اس قرآن کو اس بیٹے نے ہم سے پڑھا تھا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً نذرانۃً احترامۃً محبوب مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر صلاۃ و اسلام کا ہدیہ پیش کیجئے تاکہ اس درود پاک کے وسیلہ سے ہم بھائی عمران کے حوالے سے گفتگو کریں اور اس گفتگو کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں. تو تمام حضرات محبوب مصطفیٰ پہ عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ذرا صلاۃ و اسلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جتنے لوگ اظہار تعزیت کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں پنڈال کے اندر، علماء اکرام، حفظاء اکرام اور قرات حضرات ثناخان مصطفیٰ یہاں پہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ جیسی جیسی آپ کی نیت ہے اس نیت کے توسل سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے اور ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. اور جتنے لوگ آج اس نماز جنازہ کے اندر شریک ہیں، تمام لوگ ان کی بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کی وجہ سے جو بیمار رہے ان کے وسیلہ سے اللہ ہم سب کے صغائر اور کبائر گناہ معاف فرمائے. اب میں پہ چلتا ہوں اپنی آیہ مبارکہ کی طرف، جو میں نے قرآن مقدسہ کی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے اس کی طرف چلتا ہوں.
اللہ ताला अपने कुरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं फ़ैज़ा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। और जब मौत आ जाती है ना एक घड़ी पीछे और ना एक घड़ी अब बोलो ना एक घड़ी आगे। अल्लाह फरमाते हैं जब मैं मौत को भेजता हूँ, मलकुल मौत को मैं जब हुक्म दे देता हूँ, ए मलकुल मौत, ए रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते, अब तुझे हुक्म हो गया है। क्या हुक्म हो गया कि फलां शख्स की रूह तूने फलां जगह पे जो है वो कब्ज़ करनी है। अब सुन लीजिए, अल्लाह के इस कुरान मुक़द्दसा की साए मुबारका का ताल्लुक हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर एक शख्स बैठा हुआ था और कोई काफ के अंदर उसका रूह कब्ज़ करना था और कुछ लम्हात बाकी थे। वो देख रहा था कि हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम एक शख्स की हालत में आकर उसे बड़े गुस्से से देख रहे थे और उन्होंने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को कहा, ए हज़रत सलमान, इस हवा को हुक्म दे दीजिए, क्योंकि ये हवा जो थी हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की ताबिया थी, इसको हुक्म दे दीजिए ये कोकाफ के जंगलों में मुझे पहुंचा दे ताकि मैं कोकाफ के जंगलों में पहुंच जाऊं। ये बड़ी सख्त नज़र से ये मुझे देख रहा है, मैं इसे जानता नहीं हूं। जब अल्लाह के नबी को क्योंकि खबर थी, आपने पैगाम दिया हवा को कि इस शख्स को कोकाफ के जंगल में जाकर छोड़ के आ जाओ। जब वो हवा उसे लेकर उस जंगल में गई तो इस्राईल वहां खड़े थे। कहा मैं तुझे गुस्से से इसलिए देख रहा था, अल्लाह ने मुझे कहा था कि तूने इसे कोकाफ के जंगल के अंदर इसका रूह कब्ज़ करना है। मैं देख रहा था कि तू सलेमान की मजलिस के अंदर बैठ रहा है और टाइम कम है, वक्त कम है, कब तू वहां पहुंचेगा और टाइम होने वाला है, मैं तेरा रूह कब्ज़ कर लूंगा। फ़ैज़ा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। ये तो ईसा मुबारका के साथ बात थी। अब सुन लीजिए, अल्लाह को अपने बंदे के साथ कितना प्यार है, ये अल्लाह की कुदरत का शाहकार है। अल्लाह ने फरमाया मैंने बंदे को ना हलाल बनाया इसलिए कि अगर उसे हलाल बना जाता तो ये लोग उसकी हड्डियां रगड़ जाते, और ना मैंने उसे हराम बनाया कि लोग उसे घसीट कर किसी कस्सी में फेंक देते। मैंने इसकी शान को ऐसा बुलंद वाला किया, जब माँ के पेट में रखा माँ को हुक्म दिया कि इसकी हिफाजत कर, और जब पैदा हुआ बाप की ड्यूटी लगा दी, जिंदा है तो माँ की ड्यूटी लगा दी, कबीले वाले की ड्यूटी लगा दी कि इसकी हिफाजत कर, उसकी कफालत कर। अब जब ये दुनिया से रुखसत हुआ तो मुझे कितना प्यारा है, इतना प्यारा है कि तू इसे निला अच्छे साबुन के साथ, और फिर निलाए कौन, उसके अपने अकारब, खेश अकारब, अपने भाई। अल्लाह जी ऐसा क्यों कह दिया? फरमाया इसलिए कहा कि मैं अपने बंदे के पर्दे को जानना चाहता हूँ, मैं अपने बंदे का पर्दा रखना चाहता हूँ। कहीं नज़ा की हालत में, कहीं बीमारी की हालत में, कहीं तकलीफ की हालत में, ये कहीं इसके साथ नजासत ना लग गई हो, कहीं इसने अपने आप को साफ ना किया हो, मैं इसका पर्दा रखना चाहता हूँ। इसलिए कि इसकी जो जितना खैश कारब है वो इसके मामलात के ऊपर पर्दा डाल देंगे। अल्लाह ने कहा आपने इसको गुस्ल दो अच्छे साबुन के साथ, फिर क्या करो, कफन लेके आओ, चादरों के अंदर इसे लपेट दो इज्जत के साथ, फिर क्या करो, इसे चरपाई के ऊपर इज्जत के साथ रख दो, इसलिए कि मेरी कुदरत का शाहकार है। और फिर क्या करो, मेरे बंदे को जब उन चादरों के अंदर लपेट दिया, अब इसकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करनी है, तो क्या करना है, इसे अपने कंधों के ऊपर उठाओ, और जो इसे कंधों के ऊपर उठाता है वो 10 कदम चलता है, उसके अल्लाह गुनाह माफ फरमा देते हैं। और अगली बात सुने, अल्लाह ने फरमाया आगे ले चलो। अब इसके आगे नहीं चलना है। बड़े बड़े लोग कोटियां पहनकर, मेरी तरह बड़े बड़े जुब्बे पहनकर, बड़ी बड़ी कोटियां पहनकर, टोपियां लगाकर आगे चलते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि मैयत के आगे मत चलो, उसके पीछे मग़फ़िरत की दुआ मांगो, और फिर जब वो आ जाए जमीन पर मत बैठो जब तक वो कंधों के ऊपर है। जब उसे जमीन के ऊपर रख दिया जाए फिर उसके बाद जो है वो तुम भी बैठ सकते हो। देखो कितना अदब करा रहे हैं। फरमाया आप मेरे बंदे का अदब करो। क्या करें? कहा अपने इमाम को बुलाओ, जिस इमाम के पीछे सदर भी नमाज पढ़ता है, वज़ीर आज़म भी नमाज पढ़ता है, दुनिया का हर अमीर नमाज पढ़ता है, दुनिया का हर चौधरी नमाज पढ़ता है, उसको बुलाओ मेरे इमाम को।
आप इमाम को क्या करो कि इमाम के सामने मेरे बंदे को रखो और मेरे बंदा मेरे इमाम के सामने हो और अदब के साथ उसकी नमाज अदा हो, दुआ हो। अल्लाह ने अपने बंदे की कितनी ताज़ीम और तकरीम रखी है। ऐ नौजवानों, मेरा ये कहने का मकसद और गर्ज और गायत और पैगाम ये है कि दुनिया के ऊपर रहते हुए तुम अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का, अपने उलमा का, अपने उफ़ज़ा का, अपने कुर्रात हज़रात का तुम अदब और एहतराम करो, अपने कबीले का एहतराम करो। अल्लाह ने कहा ये मेरा शाहकार है, मेरी कुदरत का शाहकार है। और फिर जब नमाज जनाजा के लिए खड़े हो जाते हैं 4 तकबीरों में, अल्लाह के नबी ने फरमाया 4 तकबीरें जब नमाज जनाजा अदा की जाती है, लोग उसके अंदर, उस जनाजे के अंदर जितने शरीक होते हैं उनमें पारसा भी होते हैं, नेक भी होते हैं, सालिया भी होते हैं। और वो बंदा जो दुनिया के ऊपर बीमारी काट कर गया है, इस हालत में भी जाना शहादत की एक किस्म है। इन बीमारियों में ये बड़ा लंबा टॉपिक है, उधर नहीं जाना चाहता हूँ आज। फिर मौका मिला तो इंशाअल्लाह उधर उस तरफ जाऊँगा। तो हज़रात मोहतरम, फिर नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ते हुए अल्लाह आप क्या करते हैं, फरमाया उस महफिल के अंदर कुछ लोग मुतकी होते हैं, सालिया होते हैं, कुरान के कारी होते हैं, कुरान के हाफिज होते हैं, आलिम होते हैं, दीन के मुबल्लिग होते हैं, और फिर कोई बुजुर्ग सफ़ेद रेश वाले होते हैं। उनकी वजह से मैं उन सब के गुनाह माफ फरमा देता हूँ। ये अल्लाह की शाहकार है, अल्लाह की कुदरत लेकर आए। मैं पिछले दिनों में 2 दिन पहले इनसे मुलाकात मैंने की है, टाइम ज़्यादा ले लिया सारी सर। तो मैंने इनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा अब सब मेरे लिए दुआ करना। मैंने कहा इमरान क्या दुआ करूं? कहा ये दुआ करो मैं यहाँ से चलकर मस्जिद में जा सकूं, ये दुआ करो मैं एक मरतबा मदीने जाकर मदीने को देख लूं और वहाँ से कफन अपना लेके आ जाऊं। अल्लाह ताला ऐसे नौजवान जिनकी ख्वाहिश और जिनकी ख्वाहिशें ऐसी हों और ऐसे उलमाए करम अल्लाह ताला दुनिया के ऊपर पैदा करे, जिन उलमाए करम हक और सच की बातें बताते हैं। अल्लाह मुझे भी और आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। हदिया दुरूद व सलाम बाहुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सामीन इकराम, हमारा ये अज़ीज़ राजा लदीता साहब का बेटा, इंतसाब साहब का भांजा, नौजवानी की हालत में बीमारी काट कर आज दुनिया से जा रहा है। दुआ करें अल्लाह इस मरहूम की कब्र की मनाज़िल को आसान फरमा कर, अल्लाह ताला आने वाले नेक लोगों के वसीला से इसी मग़फ़िरत फरमाए, बीमारी के वसीला से गुनाहों से दरगुजर फरमाए। सामीन, तवज्जो तलब बात है कि अल्लाह बंदे को मारता है, पैदा भी उसी ने किया है। और कितनी बड़ी बात है कि एक आदमी को परवान चढ़ा कर खूबसूरत सेहतमंद तंदुरुस्त करके फिर उसको मार देता है। और जिसके घर से मैयत उठती है वहाँ एक वावेला होता है, लोग रोते हैं, आहो बका होती है। एक ऐसा समा होता है कि पत्थर दिल भी पिघल जाता है। लेकिन आओ, अल्लाह कितना करीम है, उसने मारना तो था, उसने एक अपना कानून बना रखा है। अगर मेरे और आपके रोने को देखता तो फिर पता नहीं क्या कुछ यहाँ बाकी होता, लेकिन उसका एक कानून है। आओ आका की बारगाह में चलते हैं। आका ने फरमाया मेरे बंदो, मेरे उम्मतियों, अल्लाह बड़ा करीम है, वो तुम्हें इसका बदला देगा ना। तुम्हारा अगर जवान बेटा मर गया है तो तुम्हें इसके बदले खजाने अता फरमाएगा। बारिला वो खजाने क्या है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया जिसका जवान साला बेटा मर जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से फरमाता है ओ किधर गए थे फरिश्तों, जबकि रब जानता है। अर्ज करते हैं बारिला हम एक नौजवान की रूह कब्ज करने गए थे, बारिला हम उसकी रूह कब्ज करके लाए हैं। फरमाया जब तुमने उसकी रूह कब्ज की तो उसके अहले खाना, उसके वालिदैन क्या कर रहे थे? बारिला वो रो पड़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि की सदा आने लगी। अल्लाह का हुक्म है, बारिला तेरी कज़ा है, आ गई है। ये अल्फाज कह रहे थे, अल्लाह सब्र कर रहे थे। मुख्तसर करता हूँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं बंदो, फरिश्तों, फिर इस बात पर तुम गवाह हो जाओ कि मैंने उस बच्चे की भी मग़फ़िरत कर दी है, उसके वालिदैन की भी कर दी है।
اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، جاؤ جنت کے اندر ایک محل تیار کرو. اللہ فرماتا ہے جب کن فیکون، جب فرماتا ہے ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے جاؤ ایک محل تیار کرو اور اتنا خوبصورت تیار کرو کہ جو کوئی بھی دیکھے اس کا دل بہک جائے، للچا جائے کہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے، اتنا خوبصورت محل کس کا ہے. تو جاؤ اس کے اوپر لکھ دو بیت الحمد، یہ رب کی تعریف اور رب کا شکر ادا کرنے والے کا مکان ہے. باراللہ یہ کس کے بدلے میں ہے؟ فرمایا اس کا جوان سالہ بیٹا میں نے نہیں مارا ہے. اس کو جو غم ملا ہے نا، دکھ، وہ جب اس محل میں داخل ہوگا اپنے جوان بیٹے کے ساتھ تو اس کا غم ختم ہو جائے گا. چند لمحوں کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. اور جب اس کے ماں باپ اس محل کے اندر داخل ہوں گے اپنے جوان سالہ بیٹے کو معیت میں لیے ہوئے تو ان کا وہ دکھ اور غم ختم ہو جائے گا. اس بیماری کو، اس مصیبت کو بھول جائیں گے جو ان پر اچانک پہاڑ ٹوٹا تھا. اس لیے اللہ کا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. الہ العالمین جتنے بھی کلام اللہ پڑھی گئی، دیگر کلمات طیبات پڑھی گئی، نماز جنازہ ادا کی گئی، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. الہ العالمین جن بھائی صاحب کا نماز جنازہ پڑھی گئی، الہ العالمین ان کی بخش و مغفرت عطا فرمائے. جتنے بھی کلام اللہ پڑھی گئی، الہ العالمین ان کی روح میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور عطا فرمائے. ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ برام کا عطا فرمائے. قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شفا نصیب فرمائے. الہ العالمین ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو تو شے آخرت اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پانچ کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق. الہ العالمین ایک بار پھر التجا کرتے ہیں جتنی بھی کلام اللہ پڑھی گئی اس کا ثواب بھائی عمران صاحب کی رخ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور عطا فرمائے. ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بلام کا عطا فرمائے. قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شفا نصیب عطا فرمائے. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.